Hello students, welcome to my channel. Today class 9 we are going to start exercise 6.1. This is your question number 1. What this figure says, angle AOC plus BOE is equal to 70 degree. This angle AOC plus angle BOE is 70 degree. This is given to you. And BOD is 40 degree. BOD, this angle is 40 degree. ठीक है. Now what you have to find out, you have to find two things. One is angle BOE, that means this angle, and reflex angle COE. This is the only COE angle. Reflex means this complete, जब आप बाहर से जा रहे हैं, ठीक है, COE here, ठीक है. So now I will tell you how to find this. Now since this is 40 degree, so by vertically, since these two are the straight lines, AB and CD are the two straight lines. So if this is 40 degree, so this will also be 40 degree because these are vertically opposite angles and vertically opposite angles are equal. So why AOC is 40 degree? Because AOC is equal to BOD, so it is equal to 40 degree and the reason is vertically opposite angles. ठीक है. अब now if we go to the equation 1, this what is given to you. Now you know that AOC is 40 degree. So we can substitute here in place of AOC 40 degree plus BOE is equal to 70 degree. ठीक है. So what we have done, we have put the value of AOC here. ठीक है. And we can find out BOE easily, which will be 70 minus 40. That means 30 degree. Is it clear? So we have found our one answer, that is find angle BOE. ठीक है. So we have found this. Now next question is, what is this reflex angle COE? How we will find reflex COE? First we will find out angle COE, then we will find out its reflex. COE means this angle. We know that this is a straight line. AB is a straight line. So these three angles together will make 180 degree. ठीक है. Angles on straight line form equal to 180 degree. So angle AOC plus angle COE plus angle BOE is equal to 180 degree and the reason is angles on straight line. ठीक है. स्ट्रेट लाइन पे आपके जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका टोटल कितना होगा 180 डिग्री. नाउ वी नो दैट AOC इज 40 and BOE is 30 or we can put together value also 70. So COE is equal to 180 minus 40 plus 30, 70. COE is 110 degree. But the question is find reflex COE. How we will find reflex COE? 360 minus angle COE. अगर आपको किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है तो आपने 360 में से सिंपली इस एंगल को माइनस कर देना. तो 360 minus 110, that is 250 degree. So we have found both the angles. One angle BOE which was 30 degree and reflex COE which is 250 degree. Now let's move to question number 2. ठीक है. The figure is in front of you. XOY is a straight line, MON is a straight line and you can see that OP ray, angle POY is 90 degree. I have made the symbol here. A ratio B, these angles are A and B. Ratio is given to you 2:3 and you have to find this angle C, means XOY. ठीक है. Now ratio is given, so we can let A is 2x and B is 3x. ठीक है. Now you can see that XY is a straight line. तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया है, स्ट्रेट लाइन पर जो आपके एंगल्स बनते हैं उन सब का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो यहाँ पर XY स्ट्रेट लाइन है और उस पर कितने एंगल्स बन रहे हैं, एंगल B, एंगल A एंड दिस एंगल 90 डिग्री. तो वी कैन राइट इट B
plus A plus angle POY is equal to 180 degree and the reason is same, angles on straight line. ठीक है, जो भी आपकी सीधी लाइन पर एंगल्स बनेंगे, ठीक है, अगर दो होते तो हम उसको नाम देते लीनियर पेयर, अब दो से ज्यादा है तो हमने क्या नाम दिया उसको, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन. नाउ B is 3x, A is 2x and POY is 90 डिग्री. तो यहां से आप x फाइंड आउट कर लेंगे. 180 माइनस 90, 5x is equal to 90 and x is 90 by 5 which is 18 degree. x आपका 18 आ गया, तो x अगर 18 आ गया तो you can tell angle A and B. ठीक है, तो एंगल A आपका है 2 into x, x means 18, तो A आपका आ गया 36. इसी तरह से B आपका है 3 into 18, x की वैल्यू 18 आई है, यहाँ पुट कर दिया आपने, तो B आ गया आपका 54 डिग्री. बट हमने A और B नहीं निकालना है, बट वी नीड टू फाइंड आउट एंगल C. अब आप ये देखो MNB क्या है, स्ट्रेट लाइन, MN इज अ स्ट्रेट लाइन, तो MN पे जो एंगल्स बनेंगे उनका सम होगा 180 डिग्री. तो MN पर यहाँ कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल B एंड एंगल C. ये MN स्ट्रेट लाइन है और उस पर एंगल बन रहे हैं B और C. ठीक है, तो इसलिए B और C का सम कितना होगा, 180 डिग्री. अब हम इसको नाम देंगे लीनियर पेयर, क्योंकि आपके स्ट्रेट लाइन पर दो ही एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, इन दोनों का टोटल सम कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. Now we know that what is B here. B is 54. We have found B earlier, so we'll put the value here. ठीक है, तो 54 ट्रांसपोजिशन से यहाँ आएगा, तो 10 minus 4 is 6 and 7 minus 5 to 126 डिग्री. तो आपका आंसर आ गया, C की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 126 डिग्री. तो आप देख रहे हो सारी प्रॉपर्टीज पिछले वाली यूज हो रही है. क्लियर? हाँ जी बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इसका सम भी 180 डिग्री है और इसका सम भी 180 डिग्री है, तो राइट साइड इक्वल है, तो मैंने लेफ्ट भी क्या लिख दी, इक्वल, कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम है, तो मैंने इक्वल का साइन लगा दिया. नाउ व्हाट वी आर गिवन, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. तो PQR और PRQ ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. अगर ये इक्वल है तो उधर जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा, और इधर प्लस में है उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो आपको ट्रांसपोजिशन करने की कोई जरूरत नहीं है, उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे इनको कैंसिल करके दिखा सकते हैं. और यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ बिकॉज. जब ऊपर 2 डॉट्स होती हैं, अगर ऊपर एक डॉट है नीचे 2 डॉट्स हैं, दैट मीन्स देयरफॉर, इसका मतलब है बिकॉज. आपने क्यों कैंसिल किया है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं, PRQ. तो ये कैंसिल हो गए, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, एंगल PQS हियर एंड देयर PRT. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. यही आपको प्रूव करना था, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो हेंस प्रूव, आपने प्रूव कर दिया इसको. इज इट क्लियर? तो वेरी सिंपल, आपको ये भी क्लियर हो गया कि क्यों कैंसिल किए, क्योंकि ये इक्वल है और ये प्लस है, तो उधर जाके माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा. तो आई हैव सिंपली शोन हियर, आई हैव कैंसल्ड हियर. इट इज आल्सो वेरी इजी. नाउ दिस PQR is a triangle and what we have done, the QR side of the triangle is extended to both the sides, here S and here T. ठीक है, what is given to you, these two angles which are shown here, these two angles are equal. This is given to you. PQR is equal to PRQ. What we have to prove, आपने प्रूव करना है कि ये जो PQS एंगल है, ये जो आपको बाहर दिखा रही हूँ मैं एक्सटीरियर में, PQS और PRT, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है. अगर अंदर वाले इक्वल है तो आपने प्रूव करके दिखाना है कि जो बाहर दिख रहे हैं आपको एक्सटीरियर में एंगल्स दिख रहे हैं, दैट आर आल्सो इक्वल. तो अगेन वेरी सिंपल, व्हाट वी कैन डू हियर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगेन लीनियर पेयर, ST इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एंड दिस इज अ रे, QP इज अ रे स्टैंडिंग ऑन इट. तो देयर दीज फॉर्म्स 2 एंगल्स whose sum will be 180 degree according to linear pair.
तो आई एम राइटिंग हियर एंगल PQS। आपको पता है वर्टेक्स को सेंटर में लिखते हैं, तो वर्टेक्स क्या है? Q, जहां पर आपका एंगल बन रहा है। तो PQS प्लस PQR is equal to 180 degree and the reason is linear pair। ठीक है, सिमिलरली है बेटा, ठीक है, इसी तरह से आपका ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों भी क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो व्हाट इज दिस एंगल? PRQ प्लस PRT, ये मैं एक्सटीरियर वाला लिख रही हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। सेम रीजन। नाउ बोथ हैज द सम 180 डिग्री, दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है, तो मैं इक्वेट कर सकती हूँ अगर मैंने इसे इक्वेशन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, व्हाट दिस फिगर सेज AOB is a straight line but COD is not a straight line. This is OC ray and this is OD ray. OC is above the line and OD is below the line. ठीक है, and there it forms 4 angles. The angle names are given to you in the question only. This is X, this is Y, this is Z, this is W. And what is given to you? The sum of X and Y is equal to sum of W and Z. You have to prove that this AOB is a straight line. AOB is a line का मतलब है आपने प्रूव करना है ये सीधी लाइन है। तो अब आप यही नहीं कहोगे कि ये दिख रहा है, आपको लाइन को प्रूव करने के लिए क्या करना है? उस लाइन के ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम आपको 180 डिग्री दिखाना है। ठीक है, लीनियर पेयर का रिवर्स होगा। अगर सम 180 डिग्री बन रहा है इसका मतलब लाइन क्या है? स्ट्रेट, वो सीधी लाइन है। AOB इज अ लाइन। तो अगर आपने AOB इज अ लाइन प्रूव करना है तो या तो आप x प्लस वाई 180 डिग्री दिखा दो या w प्लस जेड 180 डिग्री दिखा दो, दोनों ही AOB के ऊपर AOB पर बन रहे हैं। ठीक है, चाहे आप ऊपर वाले 2 एंगल्स दिखा दो, चाहे आप नीचे वाले 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री कर दो। क्लियर? अब देखो आपको क्या गिवन है, पहले मैं एक यूज करती हूँ, सीधा यूज करती हूँ। वी नो दैट कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, तो दिस इज अ कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ऑल द 4 एंगल्स मेक्स x plus y plus z plus w is equal to 360 degree because it forms a complete angle। ठीक है, सारे एंगल्स मिलके तो कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री बनता है ना। हमने लीनियर पेयर यूज ही नहीं किया क्योंकि हमने लीनियर पेयर इसमें प्रूफ करके दिखाना है। लीनियर पेयर है, फिर तभी कहेंगे लीनियर पेयर तो तभी बनता है जब क्या हो? स्ट्रेट लाइन हो। तो लाइन प्रूफ करनी है तो वी कैन नॉट यूज लीनियर पेयर है। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट एंगल यूज कर लिया। अब हमें पता है x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है? w प्लस जेड के। दिस इज गिवन टू यू। ठीक है, तो वी कैन यूज दिस। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड हियर प्लस जेड प्लस w इक्वल टू 360 डिग्री। तो आई हैव रिप्लेस दिस x प्लस वाई बाय w प्लस जेड। ठीक है, नाउ वी हैव 2 w's and 2 z's। I can take 2 common from here and w plus z will become 360 by 2 that is 180 degree। ठीक है, w और z का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। तो अगर ये 180 डिग्री है बट ये लीनियर पेयर है ना, तो आपने क्या लिखना है? बट दिस फॉर्म्स लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कब बनता है? जब लाइन क्या होती है? स्ट्रेट। W और Z एंगल्स किस पे लाई कर रहे हैं? AB पर, और इनका सम 180 डिग्री है। व्हाट डज दिस मीन? कि इनका सम 180 डिग्री है और इसका मतलब लीनियर पेयर बन रहा है। और लीनियर पेयर कब बनता है? जब वो स्ट्रेट लाइन हो। इम्प्लाइज AOB इज अ लाइन। लीनियर पेयर बना है तो इसका मतलब लाइन है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो इसमें आप लीनियर पेयर नहीं ले सकते हो क्योंकि वो आप प्रूव करोगे। लाइन के लिए आप लीनियर पेयर प्रूव करते हो। तो यू कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट एंगल हियर, दैट कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री।